آج کا زندہ پاک کلام پاسٹر صاحب سے سنیں گے. ہم دعوت دیں گے پاسٹر صاحب کو کہ آئیں آج کا زندہ پاک کلام سنائیں. آپ سب کی تعلیم پہ پہنچیں. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند جو بھلا خدا ہے, میرا اور آپ کا خدا, اور یہ وہی خدا ہے جو ابراہم کا خدا ہے, اسحاق کا خدا ہے, داؤد کا خدا ہے, موسیٰ کا خدا ہے, یعقوب کا خدا ہے, ہمارے باپ دادا کا خدا ہے. یہ وہی خدا ہے جو ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا اور 40 برس تک بیابان کے اندر, ڈیزرٹ کے اندر ان کو من کھلاتا رہا, اور نہ ان کے کپڑے پھٹے, نہ ان کے جوتے چھوٹے ہوئے. اس کا نام یہوہ ہے. وہ یہوہ یری ہے, یہوہ نسی ہے, یہوہ رافع ہے. میں اور آپ اسی یہوہ خدا یعنی کہ اپنے آسمانی باپ کی حمد, تعریف اور ستائش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہلیلویا. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی برکتوں کو حاصل کرنا, آسمانی برکتوں کے لیے جانفشانی کرنا, ہارڈشپ کرنا, اس سے برکتوں کو مانگنا, اور جتنی قوتیں ان برکتوں کی راہ کے اندر حائل ہیں ان سے ان برکتوں کو چھین لینا. ہلیلویا. This is very important for this. اگر آپ کی برکتیں کہیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ کو نہیں مل رہی, اس برکتوں کے درمیان میں, آپ کے ان برکتوں کے درمیان میں پہاڑ ہیں, ہرڈلز ہیں, ہارڈشپ ہے, شیطانی ابلیسی قوتیں ہیں, چینز ہیں, بندھن ہیں, بانڈیجز ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہلیلویا. اپنی برکتوں کو, اپنی ہیلنگ کو, اپنی بلیسنگ کو, اپنے گفٹس کو جو کہ ہمیں نہیں مل رہے ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے. ابھی جب میں افسیوں کا خط پہلا باب پڑھوں گا اور آپ نے میرے پیچھے پیچھے بولنا ہے. میرے پیچھے پیچھے بولیے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا, اونچا بولیے. If you are church, اگر آپ کلیسیا ہیں تو اونچا بولیے تاکہ یہ آواز, یہ پاور شیطان, ابلیس اور ان کے قوتوں کے خلاف استعمال ہو. جو کچھ آپ بولے, اگر آپ ڈر ڈر کے سہمے بے ایمانی کی حالت میں, شک کی حالت میں بولیں گے تو ابلیس ان چیزوں کو آپ کے لیے جو آپ کی ہے چھوڑے گا نہیں. ہلیلویا. جب بھی آپ بولتے ہیں ایمان کے ساتھ بولیے. جب بھی آپ کمانڈ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ کمانڈ کیجیے. جب بھی آپ پاور کو ریلیز کرتے ہیں ایمان کے ساتھ کیجیے. ہلیلویا. میرے پیچھے پیچھے بولیے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی برکت, ہر طرح کی برکت بخشی. ہلیلویا ہلیلویا. یہ افسیوں کے خط پہلے باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے جو ہمارا آسمانی باپ ہے
यीशु मसीह के वसीले से हमें हर तरह की बरकत बख्शी हुई है। ऑलरेडी इट इज गिवन टू अस। हर तरह की बरकत, हर तरह की नेमतें, हर तरह की हीलिंग, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी बरकत हमारे लिए ऑलरेडी आसमानी मुकामों पर मौजूद हैं। और जब हम खुदा के बेटे या बेटियां बन जाते हैं या कहलाते हैं तो हम उन बरकतों तक पहुंच सकते हैं। हमारी रसाई वहां तक मुमकिन है। और अगर कोई रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को फिर हमें तोड़ना है, चेन को ब्रेक करना है। स्पिरिचुअल रैम में जाकर, ये दुनियावी रैम है जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये वर्ल्डली दुनिया रैम है जो हम फिजिकली आंखों से देख रहे हैं। एक रूहानी दुनिया है, लेकिन रूहानी दुनिया के अंदर जाने के लिए यहीं से ही आपको रूहानी बनना पड़ेगा। जब तक आप रूहानी रैम में जाकर शिकस्त नहीं देखते, उस वक्त तक ना आपकी हीलिंग होगी, ना आपकी खुशहाली होगी, ना आप इमोशनली शादमानी हासिल कर सकेंगे, बल्कि आप दिन ब दिन स्क्वीज होते चले जाएंगे, निचोड़ते चले जाएंगे और प्रेशराइज होते चले जाएंगे, जो दुनिया के अंदर डूबते हैं। आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके रुपए पैसे को, आपकी सेहत तंदुरुस्ती को वो निचोड़ कर रख देंगे। क्यों? जब भी हम यीशु मसीह के साथ चलने का अहद कर लेते हैं, तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसी दिन से इब्लीस, शैतान, डेविल, डार्क पावर से हमारी दुश्मनी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें बरकतों को हासिल करना चाहिए, उन गिफ्ट्स को हासिल करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कोई दुआ में, लास्ट दुआ में एक आवाज को, एक ऐलान को कोट कर रहा था। वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब हम मत्ती की इंजील 11वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ, बल्कि मेरे पीछे पीछे बोलिए, आज मैं तरतीब चेंज कर रहा हूँ, खुदा के कलाम, मेरे पीछे पीछे बोल रहा हूँ। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर शोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, और जोरावर उसे छीन लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक आसमान की बादशाही पर जोर, ताकत, हर तरह का हरबा, टैक्टिस, प्लान, जाल, नेटवर्क इस्तेमाल होता है। और जो जोरावर होता है, जिन्होंने रेसल की होती है, जिन्होंने जोर किया होता है, वो जब जोर वाले हो जाते हैं तो वही लोग छीन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दुआ के अंदर खुदा के कलाम के साथ साथ, ईमान के साथ साथ, रास्तबाजी के साथ साथ, अगर आपका रूहानी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता चला जाता है तो आप जोरावर होते हैं। जब आप फिर कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से, तो अपने
अपनी बरकतों को, अपनी बख्शिशों को, अपनी रहमतों को, अपने जलाल को, अपने फजल को और शैतान इब्लीस से और गलत किस्म के लोगों से, गलत किस्म की निगाहों से छीन लेते हैं। लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर कमजोर हैं या जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, ज्यादा दुआ नहीं कर सकते, ज्यादा दुआ में नहीं ठहर सकते, ज्यादा खुदा के कलाम को नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आपके ज़हनों के अंदर शक आता है, आपके ज़हन कमजोर हो जाते हैं, तो आप उस डेस्टिनी को, आप उस पर्सनैलिटी को, आप उस बरकत को नहीं छीन सकते जब तक आप जोर आवर ना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी गुलाम यीशु मसीह का खून हमारे लिए है, ऑलरेडी उसकी रोशनी, लाइट, उसकी पावर, यीशु मसीह के नाम की पावर हमारी जिंदगियों में है। लेकिन जब तक वो आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, उस लेवल की नहीं है, आप कमजोर रहेंगे। क्योंकि कलाम कहता है कि ये जो बदन है ये रूहुल कुद्स का मक़दस है, और अगर ये मक़दस है रूहुल कुद्स का, अगर रूहुल कुद्स है तो रूहुल कुद्स तो एक पावर है, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि ये मेरे रूह से। खुदावंद फरमाता है, आए पहाड़ तो मैदान हो जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और अगर तो आपके अंदर खुदा का रूह है, अगर तो खुदा का रूह है, अगर तो पाकीज़गी का रूह है, तो फिर तो आप शैतान को, इब्लीस को डांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, बीमारियों को निकाल सकते हैं, अपने घरों के अंदर से नजास्तों को निकाल सकते हैं। और अगर आपके बदन के अंदर रूह कुद्स नहीं है, क्योंकि जहां पर पाक रूह होता है वहां पर ना तारीकी ठहर सकती है, ना गंदगी, ना नजासत ठहर सकती है। अगर नापाकी आपके जिस्मों के अंदर है, वहां पर रूह कुद्स नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस वक्त तक खुदा के साथ उस लेवल तक नहीं जा सकते जब तक आपका ताल्लुक खुदा से नहीं है। यानी कि रूह कुद्स आपके अंदर नहीं है। रूह कुद्स तो नाराज होकर भी चले जाता है जब गंदगी और नापाकी हमारी जिंदगियों में आती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बदन को पाक और साफ रखिए। अगर बदन पाक और साफ अंदर से नहीं है तो हमारी दुआएं भी ऊपर नहीं जाती। इसलिए कि रूह के साथ मिलकर, यानी कि खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर वो शफाअत करता है, बरकतों के लिए इल्तिजा करता है, हमें सिखाता है कि कौन सी दुआ कैसे करनी है। और अगर रूह कुद्स ही अंदर नहीं है, नापाकी गंदगी की वजह से, गलासत की वजह से, नजासतों की वजह से, फरेब की वजह से, झूठ की वजह से, तो आपकी दुआएं मुअस्सर नहीं हो सकती। ये शैतान को, इब्लीस को डोमिनेट नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। इफ्सियों के खत जब हम पढ़ते हैं, उसका 6वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर बल्कि ये भी मेरे पीछे पीछे, ये बड़ा जरूरी है, ये खुदा की आज मर्जी है। खुदावंद ने पूछा, बोली, करो इबादत भी आएगी। खुदावंद ने और उसकी कुदरत में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको।
کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں ہلیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے آسمان تک شیطان ابلیس کی رسائی ہے، اور اگر آپ کی دعائیں یہاں پر روک دی جائیں یا رک جائیں، شیطان ابلیس، اس کے ایجنٹ، اس کے موکل حالات اور واقعہ، اگر آپ کی کمزور ایمان آپ کے اندر ہے، آپ کی دعائیں حالت کمزور ہے، آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے، پاکیزگی کا روح نہیں ہے، تو آپ کی دعا کس طرح دوسرے آسمان یا پھر تیسرے آسمان تک جائے گی؟ شیطان تو اتنی روک دے گا، حالانکہ آلریڈی آسمانی مقاموں پر آپ کی بلیسنگ پڑی ہوئی ہے، آپ کی برکتیں پڑی ہوئی ہے۔ How can you receive the blessing from the Lord God؟ آپ کس طرح ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ This is for the struggle۔ جب تک آپ جانفشانی نہیں کریں گے، جب تک آپ گھٹنے نہیں دیکھیں گے، جب تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے نہیں، پاکیزگی اور ہولینس کے ساتھ نہیں چلیں گے، خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ اگر نہیں ہوگا تو آپ کی دعائیں اسی جگہ پر دوسرے آسمان تک رک جائیں گی۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، یسوع مسیح جب سکھا رہے تھے دعا کے لیے کہ دعا کرنا کس طرح کرنا چاہیے، کلام کہتا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹائے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یسوع مسیح دراصل یہ حاصل کرنے کی، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بات آپ کو بتا رہے تھے، اور کہتے ہیں بس جب تم پورے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ When you ask to the Lord God, when you knock the door, He will give you the blessing. What you like, what is your need, what is your desire? جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے، جو کچھ بھی آپ نے مانگا ہے، خدا آپ کے لیے ان برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آسمانی باپ ہے، ایک پرسنالٹی ہے بائبل مقدس کے اندر، اس کا نام الائجا یعنی کہ ایلیا ہے۔ آج اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی برکتوں کو، اپنی ڈیسٹنی کو، اپنے گفٹس کو، اپنی ڈیزائر، اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو اپنے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہی خدا کا خادم ہے جو کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں می نہیں برسے گا۔ پھر یہ نبیوں کو اکٹھا کرتا ہے، فیک نبیوں کو، ایزبل کے نبیوں کو۔ احب جو وہاں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، اور وہ قربانی کو، جو شام کی قربانی ہے، اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس آگ کے ذریعے سے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے جو ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ اگر تو آپ اسی خدا کو مانتے ہیں، ضرور ہے کہ مانتے ہوں گے، کبھی کبھی ہم دو بیڑیوں کے شکار رہتے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، اور خدا آسمانی باپ کو بھی مان رہے ہوتے ہیں۔
دوسرے لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہوتے اور اپنے لوگوں کو بھی چرچ جا جا کر خوش کر رہے ہوتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر برکت بلکہ برکت پر برکت رہے گی اور آپ دوسرے پیالے میں سے نہیں پی سکتے کسی بھی حالت میں, روحانی طور پر اور جسمانی طور پر. اور اگر وہ پیون وہ جو ایک زہر کی سپلائی لائن ہے آپ کے اندر لگ گئی تو وہ زہر کی سپلائی لائن آپ کے ساتھ نسل در نسل وہ زہر کی سپلائی لائن جائے گی اور یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہی نہیں. ہاللیلویا. اسی لیے میں یسوع مسیح کو مانتا ہوں, اسی لیے میں کرسچن کہلاتا ہوں, اسی لیے میں مسیحی کہلاتا ہوں. میں نے اپنی زندگی اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو دی ہے. میں نے یسوع مسیح کے معجزات کو, اس کی پاور کو, اس کے خون کی پاور کو, اس کے جلال کو بڑے قریب سے دیکھا. اسی وجہ سے I'm a servant of the Lord God. ہاللیلویا. ہم سیکھیں گے ایلیا سے کہ وہ اپنی برکتوں کو, اپنی ڈیسٹنی کو کس طرح حاصل کرتا ہے. بڑے غور سے سنیے گا. پہلا سلاطین فرسٹ کنگز چیپٹر 18. جی, فرسٹ کنگز چیپٹر 18 verse commencing from 41. پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے پڑھنا چاہتے ہیں. خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے, پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا اوپر چڑھ جا, کھا اور پی, کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. سو اخیاب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کو مل کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سر نگون ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر 7 بار جا, اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے. تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے. اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیاب سوار ہو کر یزرائیل کو چلا. آمین آمین آمین. ہاللیلویا. ابھی ہم نے خدا کے خادم, خدا کا جو بندہ ہے ایلیا کا ایک پیسج خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے. وہ بادشاہ اخیاب کو کہتا ہے کہ کھا پی, کیونکہ بڑے زور کی بارش کی آواز مجھے سنائی. دوبارہ دیکھیے میری طرف اور سنیے غور سے. وہ کہتا ہے کہ بڑے زور کی بارش کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. بارش نظر نہیں آ رہی, بادل ہی نہیں ہے, لیکن ایلیا کو بارش کی, وہ بھی بڑے زور کی بارش کی آواز سنائی دے رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک آپ کے روحانی کان, جب تک آپ کی روحانی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, آپ اسپرچل ریم کی چیزوں کو, روحانی دنیا کی چیزوں کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی لوگ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں, جن کے دل روح القدس نے کھولے ہوتے ہیں. یہ جو ایلیا خدا کا بندہ, خدا کا خادم
नबी है, इसके रूहानी कान भी खुले हुए हैं, इसकी रूहानी आंखें भी खुली है, इसलिए ये उस आवाज को जो अभी पहुंची ही नहीं है लेकिन खुदा के रूह से अपने रूहानी कानों से सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी खुदावंद खुदा से दुआ कीजिए कि खुदावंद खुदा आपकी जुबान को, रूहानी जुबान को खोले, आपके रूहानी कानों को खोले, आपके रूहानी आंखों को खोले, ताकि रूहानी दुनिया की चीजों को जो आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से, उसको देख सके और उनको रिब्यूक करें, उनको कमांड करें यीशु मसीह के नाम के वसीले से, ताकि आपकी जिंदगी से, आपके घरों से, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, आपकी कलीसिया से, आपके पादरी पास्टर से और आपकी जो दुआएं है उससे जाएं, ताकि आप शादमान हो, खुश हो, खुल हो और उन ब्लेसिंग का सही तौर से लुत्फ अंदोज हो। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने खादुम को कहता है कि जा देख कि बारिश या बादल है कि नहीं। वो जाता है और वापस आता है और कहता है कि कुछ भी बारिश नहीं है, बादल नहीं है, सही सन जो सूरज है वो चमक रहा है, उसको फिर भेजता है और ये अपना सर जो एलिया है अपना सर घुटनों में दे देता है, यानी कि ये दुआया हालत में चला जाता है, स्पिरिचुअल दुनिया में, स्पिरिचुअल रेम में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 7 दफा खादिम जाता है, उसका सर्वेंट जाता है। आजकल का कुछ सर्वेंट हो, एल्डर हो, डीकन हो, पादरी पास्टर हो, बिलीवर हो, चर्च मेंबर हो, अगर उसको कहे कि जा बाहर कोई आ रहा है, जा, 1 दफा जाएगा, 2 दफा जाएगा, वो पादरी को क्या बोलेगा आगे? कि पादरी को तो समझ ही नहीं है, मेरे कान बाजते ने, इसकी ये धोखा देता है, ये फेक है। लेकिन ये खादिम बड़ा ही ओबीडियंट है, बड़ा ही ताबे फरमान है, ये जाता है, जितनी दफा ये बोलता है ये उतनी जगह जाकर देखता है। 7 का अदद कामलियत का अदद है। उसके बाद वो आता है, 7वीं बार के बाद वो आता है कि एक समुंदर से एक बादल हाथ की मानंद, एक हाथ की मानंद वो दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर खुदा अपना हाथ ना बढ़ाए, अपनी शिफा ना नाज़िल करे, अपनी बरकतों को ना नाज़िल करे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। We cannot do nothing. You cannot do nothing, but Jesus Christ can do everything. वो हाथ, खुदा का हाथ जो समुद्र के अंदर से निकला, छोटा सा हाथ दिखाई दे रहा था, इसलिए कि ये अपनी दुनियावी आंखों से देख रहा था। दुनियावी लोग दुनियावी चीजों को ही देख सकते हैं, लेकिन रूहानी लोग रूहानी चीजों को देखते हैं और उसके अंदर ही वो जम रहते हैं। एलिया कहता है कि जा, उससे पहले अखीम को कहता है कि बड़े जोर की बारिश की आवाज सुनाई दे रही है, ये और लेकिन बाहर सूरज है। ये खादिम कहता है कि हाथ की मानद बार बार जाता है और उसको कहते हैं कि हाथ की तरह का, एक हाथ की मानद उसके साइज का एक बादल दिखाई देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 दफा ये जाता है तो एलिया बार बार दुआ कर रहा है, एलिया बार बार दुआ कर रहा है, एलिया बार बार दुआ कर रहा है, जब तक उसने आकर नहीं बताया कि हाथ की मानद, हाथ के साइज का बादल आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल बार बार जब वो दुआ कर रहा था, वो उन बादलों को इकट्ठा कर रहा था। हालेलुया, वो बादलों को इकट्ठा कर रहा था, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट
से, समुद्र के अंदर से, ताकि कसरत की बारिश हो। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कसरत की ब्लेसिंग की जरूरत है, आपको 1 लाख 10 लाख की जरूरत है, और आप कहें बस जी मैं बाप बेटा पीते तो चले गए या दुआ कर ली है, या बस सोते करनी चाहिए, सोते भी दुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अपनी रूहानी दुनिया में जाना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल जो रिलेशन है खुदा के साथ वो रखने पड़ेंगे। और अगर आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है, अगर आपकी आंखें खुली हुई नहीं है, स्पिरिचुअल आई, आपके कान नहीं है, और जो रूह के साथ मिलकर आगे बढ़ता है, शफायत करता है, वो आपके अंदर नहीं है, तो आसमानी मुकामों पर जहां तक शैतान की रसाई है, आपकी दुआएं हेवन तक, आसमान तक, खुदा के तख्त तक नहीं जाएंगे, बल्कि शैतान, इब्लीस, उसके एजेंट, उसके कारिंदे उनको यहाँ पर ही रोक लेंगे। आप कहेंगे मैं तो बड़ी दुआएं कर रहा था, मैं तो बहुत दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ का जवाब नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ आसमानी मुकामों से बरकतों को छीनने के लिए, शैतान इब्लीस से छीनने के लिए आपको चौफिशानी करनी पड़ेगी, रूहानी बनना पड़ेगा, और अपने अंदर रूह कुश लेके आना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। बस जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा जो बाप आसमान पर है तुम्हें रूह कुश क्यों न देगा? क्योंकि ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से। आए पहाड़ तुम्हें दान हो जाएगा, ये पहाड़ टल जाएंगे खुदा के रूह से। अगर आपकी रूहानी जिंदगी है, अगर आप स्पिरिचुअल रैम में जाते हैं, तो फिर आप इब्लीस को, शैतान को फांदेंगे, और जो कुछ उसने आपका लूटा हुआ होगा, आप जब कमांड करेंगे उसको कि मुझे 7 गुना ज्यादा करके दे, मेरी ब्लेसिंग को, मेरी बरकतों को, मेरे फजल को, मेरे जलाल को, मेरी जो बच्चों की बरकत तूने लूटी हुई है, मेरे घर से जो रुपया पैसों को स्पीच किया हुआ, वो आपको 7 गुना करके देगा। जब आप उसको कमांड करेंगे, बशर्ते के आप रूहानी हो, आपका ताल्लुक खुदा के साथ हो, आपके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा हो। खुदावन आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत। आमीन। जवाब देता है। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बंद करेंगे। मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब आएं और दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं खुदा के आगे जो मेरा और आपका खुदा है। अपने हाथों को बुलंद करिए आसमान की तरफ। जब अपने हाथों को हम बुलंद करते हैं आसमान की तरफ, तो हम आसमान की जो बादशाह, जहाँ पर आसमान का बादशाह बैठा हुआ है, बल्कि बादशाहों को बादशाह बैठा हुआ है, हम उसकी मदद को, उसकी कुम्मत को, उसके हेल्प को मांग रहे होते हैं। हम स्पिरिचुअल रैम में चले जाते हैं, और जहाँ से हमें मदद मिलती है, हमें फजल मिलता है, शिफा मिलती है। हालेलुया। कोई भी ज़बान खामोश ना रहे। हालेलुया। सब दुआ करें अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी क्वायर के लिए, और जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी के अंदर डिफिकल्टीज या हार्डशिप महसूस करते हैं, फील करते हैं, अपने उस रीजन को, अपनी उस वजह को, अपनी उस बीमारी को खुदा के तख्त के सामने रखें। हालेलुया। वो हमारा जो खुदा है वो सुनता है, वो देखता है, वो बोलता है, जवाब देता है, बरकत देता है, बल्कि बरकत पर बरकत देता है। अपने हाथों को बुलंद कीजिए आसमान की तरफ।
अपने हाथों को बुलंद कीजिए आसमान की तरफ, ताकि खुदा आपकी दुआओं को सुने। अपने एंटेनों को, अपने वाईफाई को अब बुलंद कीजिए, ताकि ये कम्युनिकेशन, ये हॉटलाइन आपकी खुदा तक पहुंचे। हालेलुया। होंगे क्योंकि इत्तेफाक करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस मानी कदूस रब्बुल अफवाज खुदावन, यहोवा शनी, यहोवा निसी, यहोवा सबाओ, यहोवा राफा, खुदा बादशाहों के बादशाह, खुदामंदों के खुदामंद, जलाल के बादशाह, यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से हम सब तेरे मज़बा पर आते हैं, तेरे तख्त के सामने आते हैं। वापस मानी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। I bind and destroy the all evil altars in their life in the mighty name of the Lord Jesus Christ। यीशु मसीह के कुदरत वाले को जो इनकी जिंदगियों में ऑपरेट होता है। हालेलुया। Every sickness, every disease, every weakness in their body out in the mighty name of Lord Jesus Christ। हर एक बीमारी को, कमजोरी को इनके बदनों से, इनकी हड्डियों से, इनके खूनो गोश्त से, इनके पैंक्रियास से, इनकी ओवरीज से, इनके स्टमक से, इनके हार्ट से, इनकी किडनी से, इनके सर से, इनके दिमाग से, इनकी आंखों से, इनकी टांगों से, इनके जोड़ों से, इनकी घुटनों से यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ। रखा हुआ, होल्ड करके रखा हो उस डार्क पावर को इनकी जिंदगियों से, इनके घर से, इनके बच्चों से, इनकी फैमिली से, इनके रुपए पैसे से, इनके बिजनेस से, इनके जॉब से मैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से, हालेलुया, हर एक बॉन्डेज को मैं ब्रेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से। एंड आई ब्रेक every yoke of Satan, every yoke of enemy, every yoke of नाकामी और नाकामियों की evil spirits की yoke को इनकी जिंदगियों से मैं ब्रेक कर देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। खुशहाली, खुशहाली का मैं ऐलान करता हूँ इनकी जिंदगियों के अंदर, इनके घरों के अंदर, इनके बच्चों के अंदर यीशु मसीह के नाम के वसीले से। शिफा का मैं ऐलान करता हूँ इनकी जिंदगियों के अंदर, इनके जिस्मों जान के अंदर यीशु मसीह के नाम के वसीले से। फिजिकली और स्पिरिचुअली हेल्थ का मैं ऐलान करता हूँ इनकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हर उस ईवल आई को जो इनको मॉनिटर करती है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसको मैं इनकी जिंदगियों से ब्लाइंड, अंधा होने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। हर उस इविल स्पिरिट को, गलत किस्म के निगाहों को जो इनको तरक्की नहीं होने देती, इनकी सक्सेस नहीं होने देती, इनका अप लेवल नहीं होने देता, स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, फिजिकली तौर पर, उस हालात और वाक़यात को, उन इविल स्पिरिट्स को इनकी जिंदगियों से, इनके घरों से, इनके जॉब से, इनके बिजनेस से, हालेलुया, इनकी रहाइश से, घरों से यीशु मसीह के नाम से मैं निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया।
हर एक पेन को, हर एक दर्द को मैं इनकी जिंदगियों से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ। हालेलुया। इंसुलिन को मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से इनकी जिंदगियों में काम करे, और पैंक्रियास को, किडनी को, लिवर को, हार्ट को, हड्डियों को, खूनो गोश्त को यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ वो काम करे, नॉर्मल काम करे, फ्रॉम द राइट लो इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। और वापस वाणी जितनी इनकी जरूरियात है, जिनकी इनकी डिजायर है, ख्वाहिशें हैं रूहानी और जिस्मानी, वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। हालेलुया। इनके आटे पर, इनके चावलों पर, हालेलुया, इनके चिकन पर, इनके गोश्त पर, इनकी सब्जियों पर, फ्रूट्स पर, ड्राई फ्रूट्स पर, मसाला जात पर, रुपए पैसे पर बरकत मांगता हूँ, बल्कि बरकत पर बरकत मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। हालेलुया। हर उस इविल स्पिरिट को जो इनको स्क्वीज करती है, निचोड़ती है, क्रश करने की कोशिश करती है, प्रेस करने की कोशिश करती है, उस इविल स्पिरिट को इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से मैं निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। रिहाई का, डिलीवरेंस का मैं ऐलान करता हूँ इनकी जिंदगी के अंदर से। हालेलुया। एवरी इविल स्पिरिट, हर एक शैतानी कुव्वतें जो इनकी जिंदगियों के अंदर, इनके बदरों के अंदर इनको डिस्टर्ब करती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, ताकि ये रिहाई पाए, शादमान हो, खुशी और खुर्मी के साथ खुदावन यहोवा पाक खुदा की यीशु मसीह के नाम से इबादत करने वाले हों। हालेलुया। ये दुआ अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेता और पा लेता हूँ। इस हदिये नजराने के ऊपर खुदा की बरकत को मांगता हूँ, और जिन्होंने मेरे खुदा अपने दिल खोल कर मुट्ठी खोली है तेरे घर के लिए, उनके घरों तक ये बरकत, इनका अजर, इसका रिवार्ड जाए यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। 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 आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। जैसे कि खुदा ने हमें सिखाया है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। 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 अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक कुल दुनिया के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल पादरी, पास्टर, खादमों और खादमाओं के साथ, और खुसूसन इस चर्च और इस जमात और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके साथ भी हमेशा हमेशा तक होती रहे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आमीन। God bless you.